Hello everybody, my name is Binoy Rahul. In this channel, we are going to discuss about various kinds of topic which will help students who want to clear WBCS examination as well as UPSC examination as well as state PCS examination, and also it will help railway and SSC student also. So I am Binoy Rahul. I just complete my graduation and I am also complete automobile engineering from George Telegraph Institute, and I am also a cadet of number 4 West Bengal Technician Air Squadron NCC, and I am also a content writer. I write various types of content on the academic basis. So today we are going to discuss about a topic which is basically based on Afghanistan issue and Taliban issue and the history of Taliban. After a short intro, we will discuss our topic. Okay, so let's start our topic. If we want to know what was Taliban, what was the main formation of Taliban, how the Taliban was formed, then firstly we must have to know the roles of World War II. The World War II is the game changer on that time. So after World War II, two major countries gaining their powers. One major country is America and second major country is USSR. Currently USSR is known as Russia. On that time, both of the countries wants to control the whole world power, and they are fought between them a cold war. They are not fight against with each other, and they are fight the cold war against with each other on that time. So what was happen on that time? America wants to control the whole province of Middle East, and as well as USSR also wants to control the whole province of Middle East. What is Middle East? Uzbekistan, Qatar, Bahrain, Tajikistan, Iran, Iraq, those types of country is basically known as Middle East country. So come back to our point. USA wants to control Iran as well as Iraq as well as Afghanistan as well as Uzbekistan, and also USSR wants to control Iraq, Iran, Afghanistan, Uzbekistan. USA wants to implement Western education on Iraq and Iran. That's why USA build various types of university, various types of shopping mall, various types of bar on that country. But USSR see that America gaining their power on that country, and this is not good for us. So that's why USSR wants to control Afghanistan. So that's why USSR build various types of political leader as well as build various types of university, like various types of university and as well as shopping mall as well as bars. USSR wants to improve Afghanistan and USA wants to improve Iraq and Iran, but they are two enemies. So that's why USA wants to demolish Afghanistan and USSR wants to demolish Iran. That's the main reason USA grabbed the control of Afghanistan. USA built various types of political leader on Afghanistan. And after building various types of political leaders on Afghanistan, USA told them that Islam is the most important religion. You have to follow the Islam religion. Islam is the greatest religion. No other religion is not important for you. This is your country. This is Islamic country. You have to follow Islamic religion. Western education demolish your Islamic religion. And that's the main fundamental thing. On that time, student of Afghanistan grabbing those kinds of thought on their mind, and they want to build a community. Currently, this community is known as Taliban. So what is the main meaning of Taliban? The main meaning of Taliban is student. Currently, the Taliban is not literate, we all know that, but on that time Taliban was very literate because they are student on that time. They are wants to protest, they are wants to implement the Islamic law on that time. A student named Mullah Akbar. Mullah Akbar was the very famous student, and
he was the most important leader of Taliban. But USSR see that America grabbed control on Afghanistan and it is not good for ourselves. So that's why USSR sent army and sent troops on Afghanistan and telling their army that you have to control the whole province of Afghanistan. And USA see this kinds of scenario is happen right now. That's why USA provide arms, artillery, tank, various kinds of launcher, various kinds of rocket. And we all know that Afghanistan is a very vast country, is a very big country. If any country wants to control the whole province of Afghanistan, then it is not an easy job, because the whole province of Afghanistan is surrounded by various types of mountain, and the Taliban is very much aware the situation, the road, the insulation process of these types of war zone. So, and also America provide them arms and regulation, artillery, tank. USSR for 10 ईयर USSR ने 10 साल वहाँ पे युद्ध किया था, पर हार के चले गए थे अपने घर में, कुछ उखाड़ नहीं पाए थे उधर, क्योंकि उधर का जो बंजर ज़मीन है वो तालिबान के लिए सूटेबल था। वो लोग वहाँ पे जन्मे थे, पले थे, बड़े हुए थे वहाँ पे, उन लोगों को वहाँ का हर नक्शा मालूम था। पर USSR को वहाँ का हर नक्शा नहीं मालूम था। USSR ने उनके सैनिक को वहाँ पे भेज दिया तालिबान के युद्ध करने के लिए। बट इट विल नॉट गुड फॉर USSR बिकॉज इट इज़ द रॉस्ट सिचुएशन, इट इज़ द रॉस्ट, क्या बताएं हम, इट इज़ द रॉन्ग सिचुएशन, इट इज़ द रॉन्ग डेफिनेशन. That's why Taliban won the war against USSR and Taliban grabbed the control of Afghanistan. But as we all know, America met Osama bin Laden, and we all know who was Osama bin Laden, because Osama bin Laden जन्मा था सऊदी अरेबिया में और फिर चलाया था अफगानिस्तान में. अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को बड़ा किया था, अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को बनाया था, अमेरिका ने उसको आर्म्स, रेगुलेशन सब कुछ दिया था. बट क्या हुआ था, जब अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध कर रहा था तो वो मक्का मदीना जो सऊदी अरेबिया में है वहाँ से अपना फाइटर जेट फ्लाई करा रहा था. तो लादेन ने अमेरिका को बोला कि मक्का मदीना हम मुस्लिम के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है, आप क्यों वहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई करा रहे हैं. तो यूएसए ने बोलना इसमें तुम्हारा क्या जाता है, हमारा मर्जी, हम क्या करें, हम तुमको पैसा दिया है, सब कुछ दिया है. तो ओसामा बिन लादेन ने बोला अच्छा बेटा अब तो तुमको देखते हैं. तो क्या किया, 9/11 अटैक करवा दिया. 9/11 अटैक के बाद यूएसए का जो जनता है उन लोगों के माइंड में एक थॉट प्रोसेस आ गया कि इस्लाम इज़ नॉट अ गुड रिलीजियन, Islam is a very chaos religion. We have to demolish the Taliban. We have to kill Osama bin Laden. That's why USA sent their troops on 2001 on Afghanistan. And as we all know, currently is 2021 going on, and America pull out their troops and Taliban control the whole province of Afghanistan. So अमेरिका ने कुछ उखाड़ा नहीं था, सिर्फ गया और ओसामा बिन लादेन को मार दिया. और अमेरिका ने बोला कि हम लोग तालिबान को ख़त्म कर देंगे, हम लोग इधर सरकार बनाएंगे, आर्मी बनाएंगे, आर्मी को ट्रेन करेंगे, हथियार देंगे, एयरक्राफ्ट देंगे और आर्मी तालिबान के खिलाफ युद्ध करेगी. आप जान के हैरान हो जाओगे कि अमेरिका ने $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर दिया था. 2016 में हम इंडिया का GDP था $3 ट्रिलियन और उस टाइम अमेरिका ने इन्वेस्ट कर दिया था $3 ट्रिलियन सरकार बनाने में और सैनिकों ट्रेन करने में. बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. एट द एंड वी ऑल नो व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान. सो क्या किया, अमेरिका ने 20 साल तक वहाँ पर युद्ध करा. अमेरिका ने तालिबान को बनाया, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बनाया, अमेरिका ने मुल्ला अकबर को बनाया. जैसे ही ओसामा बिन लादेन 9/11 अटैक कर दिया, अमेरिका ने क्या बोला, तुम लोगों की कम्युनिटी तो बहुत गंदी कम्युनिटी है, इस्लाम इज़ अ वेरी गंदा कम्युनिटी, सो वी हैव टू कंट्रोल द होल प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान. हम लोग अभी सरकार बनाएंगे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान लोगों को पढ़ाएंगे,
तो जब तुमको पढ़ाना ही था, सरकार बनाना ही था, तो जब तुम दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तो तालिबान को बनाया क्यों? तो जिम्मेदार तो आप हुए ना। तो ये आपकी गलती है कि आपने तालिबान को बनाया, आपने आतंकवादी को बनाया, आपने आतंकवाद फैलाया। और जब आपके घर में आतंकवाद हमला हो गया, आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं वो तो एक खराब कम्युनिटी है, हमको वो ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो अमेरिका ने 20 साल वहाँ पर रहा, वेरियस टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट डेवलप किया, बहुत सारा आर्म्स प्रोवाइड किया, आर्मी को ट्रेन किया, बहुत कुछ किया, एंड बहुत से तालिबान को मारा भी, एंड ओसामा बिन लादेन को भी मारा। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने किधर मारा? पाकिस्तान में। बट पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम क्यों नहीं गया? क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट था वो साफ साफ कहता तालिबान को बनाया कौन? हमने बनाया तालिबान को। तालिबान को आपने बनाया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको मारे, हमने तो कुछ नहीं किया। बट पाकिस्तान इतना बड़ा हरामी है और इतना बड़ा बकलोल है कि पाकिस्तान छुपके से तालिबान को आर्म्स, आर्टिलरी सब कुछ सेंड कर रहा था अमेरिका के लाख मना करने के बाद, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों के वहाँ पे अगर कोई बोल दे कि वहाँ के जीडीपी ग्रो कराऊंगा, मैं वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स ग्रो कराऊंगा, मैं कंट्री को बिजनेस डेवलप कराऊंगा, तो जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। पर हाँ, अगर एक बार बोल दिया हाँ हम कश्मीर वापस ले आएंगे, तो जनता तुरंत से वोट डाल देगी। सो ये होता है पाकिस्तान में। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, लिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लर्न एंड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। सो उसके बाद क्या हुआ? वेरियस टाइप्स ऑफ जो कंट्री था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, वेरियस टाइप्स ऑफ जो कंट्री था, उन लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर तो सैंक्शन लगाई है। तुम क्यों सैन को ट्रेन कर रहे हो तालिबान को? तालिबान तो खतरा है, वो तुम्हारे ऊपर भी बॉम्ब ले आएगा। पाकिस्तान में भी एक तालिबान संगठन है जिसका नाम है टीटीपी, तारीखे तालिबान ऑफ पाकिस्तान। तालिबान दो तरह का, पाकिस्तान का डेफिनेशन क्या है मालूम है? वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है दैट वाज गुड तालिबान, बट हमारे इधर जो तालिबान है वो गुड तालिबान नहीं है, वो बैड तालिबान है। तो ये उन लोगों की मेंटालिटी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब तालिबान कुछ नहीं है, तालिबान को बनाया अमेरिका ने, तालिबान को मारा अमेरिका ने, तालिबान को आर्म्स दिया अमेरिका ने, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बनाया अमेरिका ने, अफगानिस्तान की सेना को बनाया अमेरिका ने, और अभी सब कुछ खत्म भी कर रहा है अमेरिका। तो सबके पीछे कौन है? दो कंट्री, अमेरिका एंड यूएसएसआर। सच हमेशा कड़वा होता है, पर हम लोगों को सच एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही सच है। अगर हम किसी भी यूपीएससी के बुक को ओपन करें और हम पढ़ें, और हम अगर कहाँ पर भी गूगल करें और यूट्यूब पे सर्च करें कि तालिबान को बनाया कौन, सबको पता है यार, तालिबान को अमेरिका ने बनाया। सो उसके बाद क्या हुआ? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शरिया लॉ। व्हाट इज शरिया लॉ? हम लोगों को पता है कि शरिया लॉ को हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जाना जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ शरिया लॉ वर्तमान में चालू है, जो कि कुरान में लिखा हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शरिया लॉ है। बट क्या होता है ना, जब सपोज हम लोग हिंदू है और हम लोगों का पवित्र बुक है गीता, एंड हमारा गीता में कुछ बातें लिखा हुआ है, अगर हम उस बात को फॉलो करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट अगर कोई पंडित जी अपने बात उसमें थोप दे और बोले कि नहीं यही गीता में लिखा हुआ है, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो यही हुआ शरिया लॉ के साथ। शरिया लॉ अपने आप में सही था। शरिया लॉ पे कहीं ये नहीं बोला था कि वुमेन को बुर्के ही हमेशा पहनना पड़ेगा, वुमेन कहीं पर भी वर्क नहीं कर सकता, अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दो, आँख के बदले आँख, गला के बदले गला, जान के बदले जान। ऐसा शरिया लॉ में नहीं लिखा हुआ है भाई। शरिया लॉ में बेसिक लॉ लिखा हुआ है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तहाँ आती है जब हम लोग अपने थॉट्स को वहाँ पे थोप करके बोले कि नहीं यही शरिया लॉ है और तुमको यही मानना है, यही इस्लाम में लिखा हुआ है, और अगर तुम इस्लाम नहीं मानोगे तो तुम जन्नत नहीं जा पाओगे। और उन लोगों की मेंटालिटी ऐसा होता है ना कि वहाँ पे भी वो सोचते हैं कि हाँ मरने की बाद जन्नत मिलेगा, 70 को हूर मिलेंगी। मतलब ठरक एकदम कूट कूट के भरा हुआ है उन लोगों के अंदर।
हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग क्या सोचते हैं यार ये दुनियादारी बहुत ख़राब चीज़ है, मरने के बाद शांति मिलेगा, चैन से रहेंगे, और वो लोग वहाँ पे 70 लोगों का अरेंजमेंट करके रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेंटेलिटी किस तरह का है वहाँ लोग का। एंड ये भी शरिया लॉ में वो लोग बताया है कि एक लड़का 4 शादी कर सकता है, बट एक लड़की को अगर डिवोर्स हो जाता है और लड़की का अगर कोई बच्चा है तो लड़की खुद के बच्चा को अपने पास नहीं रख सकती, उसका फादर उसके बच्चे को अपने पास रखेगा। अब बताइए क्यों नहीं रख सकती वो लड़की अपने बच्चे को खुद के पास? ये तो रॉन्ग बात है ना। लड़की क्यों वेस्टर्न एजुकेशन नहीं अडॉप्ट कर सकती? ऐसा तो शरिया लॉ में नहीं लिखा हुआ है, पर वहाँ का जो मुल्ला लोग है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा मुझको, बट यही ट्रूथ है, वहाँ का जो तालिबान है जिसको मुल्ला कहा जाता है, वो लोग अपना थॉट उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है और इस तरह से इस्लाम को बर्बाद कर रहा है और बदनाम भी कर रहा है। सो करेंटली अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हम सबको मालूम है। सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा है, और अभी तो सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं क्योंकि 31 लास्ट डेट था एंड 31 चला गया। अमेरिका ने सारे सैनिकों को पुल आउट कर लिया, अभी कुछ नहीं बचा, अभी उन लोगों को वैसे ही जीना है। पर क्या होता है ना, ये चीज़ सब गलत है। इन लोगों को हम लोग अगर पूरी वर्ल्ड के लीडर कम्युनिटी अगर कोई यूएनएसओ में मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में ये कहने से इकरार कर देते हैं कि नहीं, तालिबान इज नॉट अ टेररिस्ट, तालिबान इज अ वेरी पीसफुल कम्युनिटी, बिकॉज चाइना ने तो बोल ही दिया तालिबान इज अ पीसफुल कम्युनिटी। पाकिस्तान तो है ही है उसका चमचा, हमेशा चाटते रहता है, और रशिया ने भी बोल दिया कि हम लोग इसके इंटरनल मैटर में आएंगे ही नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ ना, तालिबान को लगा ओ ससुरा ये सब तो 2 कौड़ी के है, हम ही ससुरे सब है, पूरे वर्ल्ड पे इस्लामिक लॉ लगाएंगे, ये उखाड़ेंगे वो उखाड़ेंगे, घंटा उखाड़ेंगे, वो सब छोड़िए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप मुझसे असहमत है तो आप बताइए कि आपके थॉट्स क्या है तालिबान के ऊपर। तालिबान जो शरिया लॉ इम्प्लीमेंट, देखिए शरिया लॉ पाकिस्तान में भी है, शरिया लॉ यूएई में है, शरिया लॉ सऊदी अरब में भी है, बट वहाँ पे क्या इतना क्योस सिचुएशन है? नहीं है, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल शरिया लॉ लागू कर रहे हैं बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। बट तालिबान एकदम हार्ड शरिया लॉ लागू कर रहे हैं, कुछ रूल्स नहीं, कुछ रेगुलेशन नहीं, मारो ससुरा कोई कुछ करे, हम लोगों के क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग राज करेंगे। सो ये सब सही बात नहीं है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि तालिबान कैसे बना, उन लोगों का मेन मोटिव क्या था, शरिया लॉ क्या है, एंड तालिबान को बनाने के पीछे अमेरिका का मोटिव क्या था, एंड यूएसएसआर का रोल क्या था। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग और तरह के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक इजराइल पैलेस्तीन के टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि इजराइल इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, एंड पैलेस्टाइन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड जो करंट अफेयर्स आएगा हम लोग उस करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का जो आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें आपका हेल्प हो सके। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी के पढ़ता हूँ, डब्ल्यूबीसीएस पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो थॉट्स है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। सो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और या अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।